because the roots of Turkey are very strong. In the last 20 years, this government has been in power. They've provided stability and they've provided a lot of infrastructure, which is meant that in the last 20 years, Turkey has gone from the 18th ranked country in the world to the 11th, and we are almost on the fringe of breaking into the top 10, and it's just a matter of time before we do. So Turkey is, of course, it's supported by a large urban population, and it's a worldwide phenomena where a lot of people are moving from rural areas into urban centers. I think it's something that Pakistan is facing as well, especially the city that we're living in. Every year, we see a lot of urban migration from rural centers into Karachi, and Karachi keeps growing just like Istanbul. A young population, so there's a difference between having a young population that contributes to the GDP and is skilled and is educated, than having a young population which is not. So something which can be a big liability for us, like we say in Pakistan, that the population is a massive problem for us. Well, China, India, Turkey, countries like these have made sure that a young population become their asset instead of a liability. Citizenship investment journey, it is very, very, very simple. You come into Turkey, we consult you, you see properties. If you like one, you go through the buying process. We advise you, we make your contracts, and we also manage your property. And in case the property needs renovation, we help with that as well. Azad Homes was a natural progression from the properties business. It's a 2-year-old business for us, but in the last 2 years, we've already gone over 100 short-term rental properties. So we suggest short-term rental properties to everyone who comes into Turkey, because long-term rental properties are rented in liras, short-term is a higher ROI, is in euros and dollars, well, mainly in dollars. I think if you earn dollars, it's the safest currency in the world right now. We concentrate most of our properties, short-term rental properties, within the center of Istanbul. If some of you have been there, it's mainly Beyoğlu, where Taksim is, Shishli, Beşiktaş, all of these areas. Of course, we're on the major platforms, including Booking.com, Expedia, Airbnb, so on and so forth. Our plan is to go on to 20 platforms eventually. Azad Builders. Azad Builders is the last of the vertical integration that we've had, and I think it'll complete our entire set, where we take land, we build on it, we take old buildings, we renovate them, especially heritage properties. We take old buildings, break them down, build new ones from there. So like a friend of mine told me a couple of years back, "Bhai, kab tak dusron ka maal bechega?" So eventually, because we have a lot of sales in real estate, we want to build our own, we are building our own, and we want to sell our own, and then manage it as well. So end to end, from putting the first stone, right to managing it as maybe as a boutique hotel property as well. A little bit about our company as a whole, group as a whole, before I wrap this up. So we're into other sectors as well, including tourism, films, and all of these companies are, alhamdulillah, have done well for themselves and are market leaders. We're actually the largest international film producing company in Turkey as Azad Films. And Azad Tours and Events, which is headed by Mr. Asad Abbas, has also done really well. We have a client portfolio put outside, which you can see. Oh, it's right there. It's right there. So I guess this is going to be the end. Last few slides of our presentation, which shows the nice client base that we've been able to build over the years in Turkey. I'm going to put your logo on there as well, because we plan on coming here every year. This is the first time you guys have set this up, and hopefully PropTech is going to be successful in the coming years as well, and we'll hopefully exhibit here in the coming years. That's our contact address. If you ever want to come to Turkey, we are very good hosts. We're looking forward to seeing you in Turkey, and hopefully everything's going to go well for all of us. Thank you very much. It's a real pleasure.
Thank you, Shanaga, for sharing beautiful insights related to the real estate development in Turkey and Pakistan. Now I would like to call Syed Zahir Ali Gilani. He will be talking about affordable housing technologies and solutions, practical implications. Please give a huge warm welcome to Syed Zahir Ali Gilani, CTO, Maimun Group. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी लोगों ने बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब किया, तो मुझे अपना एक शेर याद आ गया। सुनहरे लम्हों का मुंतज़िर हूँ, ज़मीन पे तारों को ढूंढता हूँ, फलक से किरणों की भीख मांगूं, समंदरों में गौहर तलाशूं। तो माशाल्लाह आज काफ़ी अच्छे अच्छे तारे जो हैं वो ज़मीन पे नज़र आए हैं। मैं शुरू करूँगा कि डिज़ायर प्रॉपर्टी जो है वो लो कॉस्ट अपार्टमेंट और लो कॉस्ट लिविंग सोल्यूशन दे रही है, स्मार्ट लिविंग सोल्यूशन। इसमें मौजूदा चैलेंजेस को और हमारी जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको किस तरह हमने सिंक्रोनाइज किया और क्या हम कर रहे हैं उसके ऊपर मैं स्टार्ट लूँगा। जी नेक्स्ट स्लाइड। ऑलरेडी हमारा पोर्टफोलियो जो है वो तकरीबन 15,000 अपार्टमेंट मेमन ग्रुप डिलीवर कर चुका है और नेक्स्ट वी आर प्लानिंग 5,000 इन नेक्स्ट 5 years। और इसमें जो हम जो चैलेंजेस हैं इस टाइम स्पेशली इन द कराची, वो एक ट्रांसपोर्ट का है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का है, तीसरा है सिक्योरिटी का, या आप इसको प्रायोरिटी वाइज सिक्योरिटी को फर्स्ट कर लें। तो हम उन तीनों को इस तरह से कवर कर रहे हैं कि हमारे ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन हुए हुए हैं। ब्रुनाई की कंपनी है जिसके साथ फॉर द ईवी बसेस, फॉर द ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन, फॉर सोलर, जिसके अंदर हम व्हीलिंग पॉलिसी गवर्नमेंट अलाउंस करने वाली है 500 मेगावाट के लिए। हम उसके थ्रू हम सोलराइजेशन करेंगे। तीसरा हम नेक्स्ट मैं बताता हूँ स्मार्ट सिटी वगैरह और स्मार्ट सोल्यूशन के बारे में कि क्या क्या हम लोग कर चुके हुए हैं और क्या करने वाले हैं। ये छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट, मोहसिन साहब इज अ फाउंडर मेंबर एंड मेंटोर ऑफ दिस ग्रुप। नेक्स्ट, मुस्तफ़ा शेखानी साहब इज अ CEO। नेक्स्ट, इफ्तिखार भूरा साहब, ये मैनेजमेंट इज ऑल्सो सिटिंग हेयर विद अस, इज अ चेयरमैन ऑफ डिजायर प्रॉपर्टी। ये हमारी पूरी टीम है जो आपके सामने है। ये हमारा मिशन और गोल है जिसमें हम लो कॉस्ट स्मार्ट सोल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर बेस सारी बिल्डिंग्स प्लान कर रहे हैं। ये हमारे डिलीवर प्रोजेक्ट्स हैं, फुटप्रिंट्स हमारे प्रीवियस पोर्टफोलियो, जिसमें हमने 1993 में राबिया सिटी डिलीवर किया है, फिर 95 में राबिया गार्डन किया है, 96 में राबिया हाइट्स किया है, 2000 में राबिया पेटल्स किया है, 2020 में अल फजेर ग्रुप किया है और 2020 में ही राबिया फ्लास किया है। ये हमारे प्रीवियस पोर्टफोलियो हैं जिसमें ऑलमोस्ट ये 40 के करीब प्रोजेक्ट्स बनते हैं और जिसमें 15,000 जो है अपार्टमेंट ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। और जैसे मैंने बताया कि 5,000 हम प्लान कर रहे हैं विद स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 15,000 के लिए भी हम जो O&M है वो तमाम स्मार्ट OM एप्लीकेशन हमारी डेवलप हो चुकी है, जिसको हम इमीडिएट डिप्लॉय करने लगे हैं, जिसमें सिक्योरिटी सोल्यूशन है, जिसमें हेल्थ है। लेट्स से आपके घर में कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, अलर्ट्स जनरेट हो जाएंगे आपके घर में। ये दिस इज राइट नाउ वी आर डूइंग दिस थिंग। और पहला हम स्टार्ट ले रहे हैं एक जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उससे, और ये एप्लीकेशन मोबाइल ऐप पे होगी, अलार्म जनरेट्स होंगे। घर में कोई खुदा ना खास्ता कोई रॉबरी अटेम्प्ट होती है तो अलार्म जनरेट्स कर सकते हैं और कंसर्न सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट जनरेट हो जाएंगे। ये हमारे पास तीसरा, इसके अंदर हमारे पास जो है
जो मेट आपके पास काम कर रही होती है, अक्सर 90% से ज़्यादा जो चोरियां होती हैं स्पेशली इन कराची, उसमें किसी ना किसी तरह वो रिलेशन डिक्लेयर हो रहा है, तो उसकी वेरिफिकेशन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट, जिसको हमने इसके अंदर इंश्योर किया है। उसको हम इसमें राइट नाउ वी आर डूइंग दिस थिंग कि हम उसकी वेरिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, किसी किस्म की वो चीज़ हो। ये राबिया ड्रीम्स का व्यू जो हमारा फोर्थ इस वक्त एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, उसका प्लान लेआउट है, जिसमें हम कंप्लीट, यानी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो प्रॉपर्टी में जो अभी जिस तरह रीट ने या ये जो तुर्किश कंपनी ने जो चीज़ें डिस्कस की, डेट वाज के जी पाकिस्तान इज फ्यूचर इंडेक्स कंट्री। तो जहां तक जो चैलेंजेस हैं वो हर कंट्रीज में होते हैं, हमारे यहाँ थोड़े से ज्यादा हैं, तो हमें उस पर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। हमने GIS बेस एप्लीकेशन बनाई है, और इस GIS बेस एप्लीकेशन के अंदर हम वी स्टार्ट फ्रॉम द कतोनी खसरा, यू नो, जितने भी रियल एस्टेट बिजनेस के लोग हैं, कि हम, और उसकी एक्यूरेसी जो है 3 सेंटीमीटर की है, कि जो आपकी जो खसरा और कतोनी है, अक्सर होता है कि जो बिल्डिंग गलत जगह बन गई या कुछ हो गया, तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो बायर्स हैं उनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो वहां पे बैठे हुए बुकिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें नेक्स्ट करते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। तो हम GIS बेस एप्लीकेशन डेवलप कर चुके हुए हैं, और वो हम, ये छोटा सा उसका प्लान है कि ऑलरेडी जो हमने अनाउंस किया उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हैं, ठीक है। EV चार्जिंग स्टेशन हम हर बिल्डिंग के अंदर इसमें प्लान कर रहे हैं, Tier 2 लेवल और Tier 3 लेवल बोथ, क्योंकि नेक्स्ट जो दौर है फ्यूचर, अगर आपको पता हो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का, GIS का, ब्लॉकचेन का, AI का, मेटावर्स का, वी ऑलरेडी डिड दिस थिंग, दिस इज नॉट इन द प्लानिंग, दिस इज राइट नाउ वी आर डूइंग थिंग। स्मार्ट कार पार्किंग में जो सबसे बड़ा इशू आता है कि गाड़ी चोरी हो जाती है, हम लोग स्मार्ट कार पार्किंग में जो प्लान कर रहे हैं, जो चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो है हम डबल ई टैग देते हैं, और उस ई टैग में ये होगा कि आपकी गाड़ी आपने पार्क की और एक ई टैग आपके पास है, तो गाड़ी बाहर नहीं जा सकती जब तक आपके वॉलेट का ई टैग, हाँ अगर आपने रात को वॉलेट भी गाड़ी में रख दिया तो फिर दिस इज योर लक, सो वी कांट से एनीथिंग फॉर यू। नेक्स्ट ये सेल्स पार्टनर है टोटल मेमन ग्रुप, और बाकी सारे जो चीजें, क्योंकि टाइम का मैं मुझे आ गया कि यू हैव 2 मिनट्स, तो आई नीड टू कंप्लीट इट एज अर्ली एज पॉसिबल। नेक्स्ट ये ऐप है जी हमारी, जो मैंने अभी आपको बताई, ई सिक्योरिटी मैनेजमेंट देती है, डिजिटल सोसाइटी अपार्टमेंट मेंटेनेंस देती है कंप्लीट। आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, किसी किस्म का आपके प्लम्बिंग की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, अलार्म जनरेट्स होंगे, आपके नियर अबाउट जो इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर्स हैं वो ऑलरेडी उसके साथ एंगेज होंगे, उनको बिल्कुल इसी तरह जैसे उबर का आपका सिस्टम है, दिस इज सेम लाइक दिस, उनको चली जाएगी और वो आपको कॉल बैक कर लेंगे कि जी अवेलेबल जो होंगे वो आपको कर देंगे। दिस इज ऑलरेडी वी हैव दिस एप्लीकेशन। नेक्स्ट जी, ये हमारे टोटल स्मार्ट के स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के फीचर्स हैं, स्मार्ट बिल्डिंग के हैं, इसमें स्मार्ट ऑफिस ऑटोमेशन के हैं, स्मार्ट होम के हैं, जिसमें मैंने आपको हेल्थ सर्विसेज का बताया, और स्मार्ट बिजनेस के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली तौर पे इसके फीचर्स हैं। वो जब इन डेप्थ कोई आता है हमारे पास तो वी विल डिस्कस इन डिटेल। सॉरी टाइम क्योंकि शॉर्ट हो गया है, नेक्स्ट कर दें बस स्लाइड। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि टाइम कम है तो मैं लास्ट में एक छोटी सी नज़म से इख्तिताम करूंगा, और स्पेशली फॉर द कराची। शहर रोशन में तेरी दास्तां लिखूं कैसे, तुझसे मंसूब है अनवारे जहां भूलूं कैसे, है समंदर से भी गहरी मट्टी तेरी, दफन इसमें है शहीदों का लहू ढूंढूं कैसे, शहर रोशन में तेरी दास्तां लिखूं कैसे। जज़ाकल्लाह खैर।
Thank you, Sayyid Zahir Ali Gilani, for sharing your insights. Now I would like to call Fahim Siddiqui, Bureau Chief, Geo News. He will be talking about role of media to promote property technology to boost real estate development. Please welcome Fahim Siddiqui. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फतुइज़्ज़ु बंतशा वतुज़िल्लु बंतशा। यहाँ मेरा तारुफ ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ के हवाले से तो करा दिया गया, लेकिन यहाँ इस कॉन्वोकेशन में जो ये प्रॉपटेक के तहत हो रहा है, इसमें आने की एक और बड़ी वजह ये भी थी कि मैं जो कराची के 3000 से ज़ायद सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम है कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। तो सबसे पहले तो प्रॉपटेक का शुक्रिया और आतिफ का शुक्रिया कि उसने मुझे यहाँ फंसा दिया लाके। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर जब आज यहाँ बात हो रही थी तो मैं सोच रहा था बहुत देर बैठकर कि मैं इसके ऊपर क्या बोलूंगा। जिस तरह से यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत को पेश किया जा रहा था, मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज को फ्लोट किया जा रहा था, तो मैं सोच रहा था कि इनसे मेरा लिंक कहाँ बनता है। लेकिन बैठे बैठे ये ख्याल भी आ रहा था कि ये सारी चीजें जो यहाँ पर पेश की जा रही हैं, अगर मैं ना हूं, आई मीन मीडिया ना हो, तो ये आम आदमी तक कैसे पहुंचेंगे। तो ये है बेसिकली शायद मेन मकसद जिसकी वजह से आतिफ ने यहां मुझे लाकर खड़ा किया है। डेफिनेटली जो इश्यूज यहां पर डिस्कस हुए हैं वो इश्यूज आज इस बात का तकाजा करते हैं कि इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर और इस शहर को हमने अगर अपने लिए रहने के काबिल बनाना है तो हमें अपनी गलतियों के ऊपर नजरसानी करनी पड़ेगी। वो बात जो यहां पर बारहा कही गई कि हमने अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, हमने खुद ही रूल्स को वायलेट करके आज इस शहर का ये हाल कर दिया है कि शहर से एक बहुत बड़ी तादाद मुल्क से बाहर जाना चाहती है। आज इस शहर का नौजवान, मैं पिछले दिनों आईबीसीसी और एचईसी मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ तो मैंने देखा कि बहुत बड़ी लाइनें लगी हुई हैं वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए। जब मैंने वहां के डायरेक्टर से पूछा कि ये क्या है, क्या ये आज कोई खास वजह है इसके यहाँ इतने रश होने की, तो उन्होंने बताया कि रोजाना की सूरत हाल है, रोजाना ही इतना रश होता है यहाँ पर। तो ये बेसिकली ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमें इस ब्रेन ड्रेन को रोकना है और इस ब्रेन ड्रेन को हम उसी सूरत में रोक सकते हैं कि हम यहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें अपनी आने वाली नस्ल को। अपनी मौजूदा नस्ल को तो जाहिर है हमें देना है, ये था जो हमारे बड़ों का काम था जो नहीं दे सके अगर किसी वजह से, तो जब आने वाली नस्ल है हमने उसे कैसे देना है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बतौर मीडिया भी कि वो इश्यूज जो यहाँ डिस्कस किए गए उन इश्यूज के ऊपर मीडिया को वो रोल प्ले करना है और एक ऐसा आप लोगों के साथ मिलकर हाथ मिलाना है कि जिसके जरिए चीजें बेहतर होती चली जाएं। आज यहाँ हेल्थ का इश्यू है, आज यहाँ एजुकेशन का इश्यू है, आज यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू है, आज यहाँ ट्रांसपोर्ट का इश्यू है, आज यहाँ दीगर स्ट्रीट क्राइम एक बहुत बड़ा इश्यू इस शहर का बन चुका है जिसकी वजह से लोग जा रहे हैं। लेकिन अगर हम एक सिक्योर माहौल देने में कामयाब हो गए तो डेफिनेटली आप तमाम लोग भी जो यहाँ आइडियाज लेकर बैठे हुए हैं, आप तमाम लोग भी जो यहाँ पर डिलीवर करना चाहते हैं, आप तमाम लोग भी जो यहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं, वो बिजनेस उसी सूरत में मुमकिन है जब ये शहर तरक्की करेगा, इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, इस शहर में अमन होगा, सुकून होगा, तो तभी जो है वो चीजें जो है वो बेहतर हो सकेंगी। तो मीडिया इसमें अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है, हम करते भी हैं। डेफिनेटली आप लोगों की जो भी चीजें होती हैं वो हमारे थ्रू ही लोग आम लोगों तक पहुंचती हैं। अब अगर रीट की यहाँ बात हो रही थी और रीट के ऊपर ये बात भी हो रही थी कि जनाब ये बहुत ज्यादा अभी लोगों तक पहुंचा नहीं है और इसको डेफिनेटली हमें लोगों तक पहुंचाना भी है। अभी तो आया हूं यार, 2 मिनट ही दे रहे हो, चलो खैर। तो अगर रीट को हमें लोगों तक पहुंचाना है और रीट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर हुई कि पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर हम इसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जिन इश्यूज की मैंने बात की कि अगर हमें हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाना है तो हम रीट के तहत हम हॉस्पिटल्स भी तो बना सकते हैं। अगर हमने एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बनाना है तो हम रीट के साथ मिलकर अच्छे इंस्टीट्यूशंस भी तो बना सकते हैं एजुकेशन के। तो जब ये सब कुछ मुमकिन है तो उसके बाद डेफिनेटली जो है हम ये कह सकेंगे कि हम जो आने वाली नस्ल है जिसके लिए आज मैं ये सोचता हूं
कि मेरा बेटा अगर 13 साल का हो गया तो जब वो थोड़ी सी एजुकेशन उसकी मजीद हो जाएगी तो उसे मुल्क से बाहर भेज दूंगा। तो मेरी ये सोच तब्दील होनी चाहिए, और सिर्फ ये मेरी नहीं, इस शहर के, इस मुल्क के अक्सर लोगों की यही सोच है कि उनके बच्चे जवान हो तो वो उन्हें मुल्क से बाहर भेज दें। तो फिर इस मुल्क को कौन चलाएगा? अगर सभी कुछ ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, सारा ही ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, तो तकरीबन हो चुका है, तो माजरत के साथ मुझे कहने दीजिए कि आज जो मुल्क चला रहे हैं वो इस मुल्क में जो रह गए हैं, तो जब गन्ने को मशीन में डालते हैं और वो जब मशीन उसको जो है पूरी तरह से खींच चूस लेती है, उसमें से सारा जूस निकल जाता है, तो आखिर में जो कुछ बचता है ना गन्ने का कचरा, वही कचरा आज आपका मुल्क चला रहा है। अगर हमने अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्ल को कुछ अच्छा देना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। और मैं यहाँ ये आपको एश्योरेंस देता हूं कि कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बतौर ब्यूरो चीफ जियो न्यूज कराची, जो जियो जाहिर है जंग ग्रुप, जियो एक मुल्क का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है, वो आपके साथ चलने के लिए तैयार है। हम मिलकर इस मुल्क को, इस शहर को बेहतर बना सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Fahim Siddiqui, Bureau Chief, Geo News. Now I would like to call Adnan Tumbi. He will be talking about role of technologies in real estate marketing and the way forward. Please welcome Adnan Tumbi, CEO, Mark Properties. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत सारी नॉलेज हमें देखने को मिली। रीट के बारे में, AR VR के बारे में हमने सुना, मेटावर्स के बारे में। लेकिन हम लोग अभी जो रिसेंटली हम लोगों की ग्रोथ आई है प्रॉपटेक में, दैट इज एक्सपोनेंशियल। सही है। अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाएं 15 से 20 साल, सही है, 15 से 20 साल पहले हम लोग एक टेंट लगाते थे और सारी इन्वेंट्री बिक जाती थी, रश लग जाता था, लोग कैश बोरियों में लेकर आते थे और खरीद के चले जाते थे। उसके बाद जमाना आया डिजिटल, उसके बाद जमाना आया बिलबोर्ड्स का, मीडिया, न्यूज़पेपर। लेकिन वो क्या थी? वो वन वे कम्युनिकेशन थी। वन वे कम्युनिकेशन, आप बोर्ड लगाते थे लेकिन उसके पास, आपके पास कंट्रोल नहीं था। सही है कि आपको दूसरा बंदा जब चाहेगा तभी कांटेक्ट कर सकेगा। लेकिन उसके बाद हम लोग अभी रिसेंट पास में सोशल मीडिया का दौर आया। सोशल मीडिया और मोबाइल फोन ने पूरी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। सही है। 2013 में हम लोग ने मार्केटिंग स्टार्ट करी। उस टाइम पे कोई सोशल मीडिया से या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज नहीं करता था टू सेल प्रॉपर्टी। हम लोगों का इवन मुझे अभी तक याद है, जब मैं पहली बार आया था यहाँ पे तो लोग मजाक उड़ाते थे, तुम ऑस्ट्रेलिया से आ जाते हो और बोलते हो ऑनलाइन प्रॉपर्टी बिकेगी, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी कोई ऑनलाइन नहीं खरीदेगा। तो मैं उनको बोलता था कि प्रॉपर्टी कोई क्रेडिट कार्ड निकाल के नहीं खरीदेगा, लेकिन आपका प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है और प्रोजेक्ट आप वो 7 लोगों में आ जाओगे जिनको लोगों को पता नहीं है आपके प्रोजेक्ट के बारे में। तो हम लोगों को काफी मुश्किल भी अडॉप्टेशन की। सही है। बिल्डर्स ने हमारा साथ दिया, लेकिन उनको भी फास्ट, पहले क्या था, एक दावत हलीम करो, सही है, बिलबोर्ड से भर दो, पूरा कराची शहर स्ट्रीमर से भर दो और एक दावत करो और लोग आ जाएंगे। फिर वहां पे दावत पे टोकन की आवाज लगाओ, टोकन हो गया, तो उसमें हवरा हवरी में लोग खरीदना शुरू कर देते। लेकिन अब जब बंदा हमारे पास आता है वो ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड है। सही, उसके पास सारे दूसरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं ऑलरेडी, घर बैठे बैठे। सही, वो डिसीजन लेकर आता है। अब आप उसको ये भेड़ चाल में चलने का नहीं बोल सकते, वो डिसीजन लेगा अपने टाइम पे, अपने हिसाब से। सही है। अब जब सोशल मीडिया, आज ईच एंड एवरी बिल्डर
is using social media. Social media is the most powerful और most effective. अब 6 साल पहले आई थिंक मेरी किसी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने 5 करोड़ रुपए की कैंपेन कर दी पूरे कराची में. मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा था, मुझे आप ये बता दो कि आपके किस बिलबोर्ड को देख के पब्लिक आ रही है. उनके पास कोई जवाब नहीं था. सही, उन्होंने बोला बस हम ये करते हैं, ये पूरा मिक्स प्लेटर बनाते हैं, इन्वेंट्री बिक जाती है. मैंने बोला आप लोग बहुत सारे पैसे जाया करो. सही, अब सोशल मीडिया से आपको एग्जैक्टली ट्रैकिंग हो जाती है कि कौन सी एड देख के कौन बंदा है और उसने क्या खरीदा है. ये पूरी ट्रैकिंग शुरू से लेके एंड तक. दूसरी चीज, बिलबोर्ड एक 10 साल का बच्चा भी देख रहा है. सही है, औरतें भी देख रही हैं जिनका 20% चांस होता है कि वो प्रॉपर्टी खरीद. तो सोशल मीडिया से हम लोगों को जो चांस मिला वो मार्केट सेगमेंटेशन हम कर सके, डायरेक्ट टारगेटिंग कर सके. उससे हम अपने एक छोटा सा आइडियल अवतार जो हमारा कस्टमर है, जो इन्वेस्टर है, वो हमने डिफाइन करके सिर्फ अपना मैसेज उनको पोर्ट्रे किया और उन पे सारा फोकस करते हैं. तो ये थी, उसकी वजह से सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांगली अडेप्टेशन पे हुआ. फिर ऑफ कोर्स पूरे कराची में बिलबोर्ड्स खत्म हो गए तो हमें और चांस मिल गया. सही है, तो बिलबोर्ड्स हटे, उसमें इन्वेस्टर्स कम हो गए मार्केट में, एंड यूजर की गेम ज्यादा आ गई. तो एंड यूजर क्या यूज कर रहा है आजकल? सोशल मीडिया, मोबाइल फोन. अभी आजकल मैं कहता हूँ बिलबोर्ड्स लोग लगाते हैं. आप अगर थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड देखें, एक बिहेवियर देखें कि अगर आप ड्राइवर के साथ जा रहे हैं और आप पीछे बैठे हैं तो आप क्या करें? हर वक्त मोबाइल देख रहे हैं और बाहर कोई भी नहीं देख रहा. बाहर कौन देख रहा है? आपका ड्राइवर देख रहा है, वो भी सामने वाले रिक्शे से बचने के लिए देख रहा है, गाड़ी चला रहा है. उसको आधा टेंशन ये कि कोई स्कूटर वाला अभी मार के चला जाएगा. तो टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग. अब हम इस पॉइंट पे आ गए, अब सबको सोशल मीडिया आ गया. व्हाट्स नेक्स्ट? अब हम किधर जा रहे हैं? अब हम किसी को भी कांटेक्ट करना चाहे, 50,000 लोगों को हम एक व्हाट्सएप से आज कांटेक्ट कर सकते हैं. ये पहले नहीं था. पहले आपको दावत में बुला के और सारी चीजें वो करनी पड़ती थी, पूरा हवा मचाना पड़ता था, 4 हफ्ते अखबार में चलाओ. अब आप एक बटन पे पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आप एडवर्टाइज कर सकते हो, अपना मैसेज भेज सकते हो. तो अब मूविंग फॉरवर्ड जो है वो रीट्स, प्रॉपर्टी की प्राइस है. अभी हमने रीट्स की बात करी. प्रॉपर्टी की प्राइसेस जिस उस पे जा रही है लेवल पे, एक आम बंदे के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इट्स गोना बी वेरी हार्ड. अगर हम बात करें 1 करोड़ रुपए का अगर हमारा अपार्टमेंट है, हम 4 साल के शेड्यूल पे बेचते हैं, तो एवरेज उसकी इनकम 3 लाख रुपए होनी चाहिए कि वो अफोर्ड कर सके वो हमारा 1 करोड़ वाला. अब 3 लाख रुपए अफोर्ड करने वाले पाकिस्तान में कितने लोग होंगे? तो पाकिस्तान छोड़े, कराची में कितने लोग होंगे? तो मास, आपकी जो मास मार्केट है वो 70% इज बिलो दैट इनकम लेवल. तो उनको केटर करने के लिए रीट्स जरूरी हैं. रीट्स विल बी द नेक्स्ट मार्केटिंग कंपनीज. पहले रीट्स इन्वेस्ट करेंगी, प्रोजेक्ट बनाएंगी, प्रोजेक्ट बनाने के बाद उनको सेल किया जाएगा फॉर द एंड यूजर. और एंड यूजर कैसे लेगा? एंड यूजर बैंक्स से लोन लेके 20-25 ईयर्स, जिस तरह हम पूरी दुनिया में देखते हैं. पूरी दुनिया में हमने देखा है कि लोग मॉर्गेजेस, बैंक्स, तो ये बैंकिंग चैनल विल बिकम वेरी बिग. आई am assuming in marketing of real estate, marketing will change. There will be builders, banks and customers, because banks already have data. तो और प्लेटफॉर्म्स जैसे हमने Airbnb, आप टिकट्स सिस्टम अगर पहले आज से 5-6 साल पहले देखते थे ट्रैवल एजेंट्स का, तो ट्रैवल एजेंट्स, हम लोग ट्रैवल एजेंट से बुकिंग कराते थे. अब हम डायरेक्ट एमिरेट्स की वेबसाइट से बुक करा रहे हैं. इसी तरह प्रॉपर्टी में भी इंडिया में हमने देखा, देयर इज अ वेबसाइट विच इज नो ब्रोकर.
कंज्यूमर और सेलर को डायरेक्ट कनेक्ट करा रही है विदाउट एनी बीच में ब्रोकरेज, कुछ भी नहीं है। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। अब चैटबॉट्स आपने देखा, आप अभी सिर्फ ईमेल करें या कुछ भी मैसेज करें कि मुझे इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स, अब दूसरे एंड पे देयर इज नो ह्यूमन, देयर इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो आपको बता देगा कि इस प्रोजेक्ट में कितने रूम्स हैं, क्या प्राइसिंग है, इधर किस शेड्यूल पे आप ले सकते हो। इट्स ऑल ऑटोमेटेड, आपकी पूरी ऑटोमेशन पे जा रही है। तो ये प्रोसेस जो है, व्हाट आई सी इन फ्यूचर, के जो ये पूरी एक लाइन है फ्रॉम द कंज्यूमर, उसको आपके प्रोजेक्ट के बारे में पता चले, टू बाइंग, इट विल बी ऑल ऑटोमेशन। और अभी जो मैं आपको एक वीडियो हमने प्रिपेयर की है, द फ्यूचर के फ्यूचर, एक छोटा सा ट्रेलर दिखाने के लिए एक वीडियो बनाई है कि व्हाट कुड बी पॉसिबल विद टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर। अब इस प्रॉपर्टी, इस वीडियो में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी हमने यूज नहीं की जो अभी तक इजाद नहीं हुई, सही है, या ऐसी इनोवेशन जो अभी तक रेडिली अवेलेबल नहीं है। ये अभी पूरी दुनिया में अलग अलग चीजों में यूज हो रही है, लेकिन उसको हमने कंपाइल करके एक फ्यूचर आप लोगों को दिखाने की कोशिश की कि क्या पॉसिबल है, किस तरह से फ्यूचर में प्रॉपर्टी खरीदी और बेची जा सकती है। तो अगर आप लोग वीडियो प्ले कर दें, तो एक ये वीडियो है, थोड़ी सी इसमें मैंने ह्यूमर टच भी डाला है, राहिल भाई आप तो जानते हैं, तो थोड़ा सा अदनान तुम भी टच है इसमें। तो ये इन द ईयर 2020X एक घर ये होगा। एलेक्सा, बीवी बच्चे किधर हैं? नजर नहीं आ रहे। बीवी और बच्चे अपनी नानी के घर गई हैं। अच्छा, एलेक्सा एक काम करो, चाय तो ऑर्डर कर दो। Order placed for दूध पत्ती चाय through abadrao.com। जबरदस्त। और क्या अपडेट है? आपको बीवी बच्चों को पिक करना जाना है। अरे यार, बहुत थका हूँ। एक काम करो, abadrao.com से राइड बुक कर लो ड्राइवरलेस, ताकि वो लोग अनकंफर्टेबल ना हो। Okay, ride booked and your wife has been notified about the booking। गुड। नेक्स्ट। आपने रिमाइंडर से करना था कि घर में जब सुकून हो और शोर हंगामा ना हो to remind me for property investment। हाँ, कुछ पैसे पड़े बैंक में, इससे पहले बीवी खर्च करे हम इन्वेस्ट कर देते हैं, वैसे ही डी वैल्यू हो रहे हैं। एलेक्सा, abadrao.com पे सर्च करके ऑप्शंस दिखाओ। According to your finances and other previous financial investments, abadrao.com से options आए हैं। M9 Motorway Highway is in demand based on the articles and abadrao.com recommends to invest there। उधर 3 options है, उसमें से एक project जिसके builder rating 5 star हैं, currently hot project है, user reviews भी अच्छे हैं, last plot sold 15 minutes ago, marketed by Mark Properties। एलेक्सा, इसका वर्चुअल टूर लगाओ। Yes, loading virtual tour। ये तो काफी अच्छी है, लेकिन वर्चुअल टूर में तो सब कुछ अच्छा लगता है। इसकी कोई लाइव कंस्ट्रक्शन अपडेट है? Loading live construction update। ये तो काफी काम कर दिया इन लोगों ने। इसकी अवेलेबिलिटी और पेमेंट शेड्यूल बताओ। According to abadrao.com,
You can invest in 2 120 yards or 1 240 yard plot. मेरे दोस्तों ने क्या लिया है? Majority 120 yards. Alexa, show me availability near my friend's plot. 2 plots jury available next to park, west open. Payment schedule is this. Okay. Alexa, can we make customized payment schedule? Your offer has been sent to Mark Properties. Mark Properties has accepted your offer. How would you like to pay down payment? Bank account. Thanks. How would you like to pay your monthly installment? Abad Road wallet. Payment successful via bank. File documents received via DocuSign. Please sign. Okay, done. File received from developer. Would you like to add this in My Properties at abadrao.com? Yes, Alexa, and load on screen so I can see all my property status and details. Okay, added to My Properties. Here is a list of your properties. ये वाली सोच रहा हूँ मैं बेच दूं, जितना appreciation आना था आ गया. Alexa, put this property for sale on all property platforms. According to abadrao.com, best time to list property like this is Thursday, 6:30 p.m. That ensures 80% success ratio within 4 days. Do you want me to schedule it for Thursday? Please do. Oof, ये technology. Your chai is here. Okay. Jazakallah. GG. Paid via Abad Road wallet. चाय आ गई. Alexa, anything else? No, you are updated. काम खत्म, अब Netflix लगा दो. Okay, loading Netflix. Thanks, Alexa. Kush Raho, Abad Raho, abadraho.com, the only app you need. We are actively looking for investors to make this dream a reality. If you or any of your friends want to join us in this journey, visit abadrao.com/invest. तो ये है फ्यूचर जो मैंने इन्विजन किया है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लोग घर में बैठ के प्रॉपर्टीज खरीदा करेंगे, लेकिन क्यों जाएगा कोई देखने के लिए जब उसको आप लाइव चीज घर बैठे दिखा रहे हो, उसको पेमेंट शेड्यूल घर बैठे दिखा रहे हो, तो वो उसका जाना बनता ही नहीं है. और इसका सेल्स प्रोसेस इतना फास्ट हो जाएगा कि बिफोर यू ऑर्डर समथिंग, फूड पैंडा या किसी से भी आप कुछ ऑर्डर करते हो उससे पहले आप प्रॉपर्टी खरीद लोगे. फिर एग्रीगेशन, एआई आपको बताएगी कि क्या लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स और न्यूज. तो ये पूरा एक अभी नहीं होगा 5 साल 10 साल में, लेकिन ये सारी चीजें जो आपने देखी ये ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी अलग अलग चीजों में चल रही है. तो देयर विल बी वन ऐप विच विल कंट्रोल एवरीथिंग. उसको पता होगा आपके फाइनेंसेस कितने हैं, आप कितने की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो और आपको किधर लेना चाहिए, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, आप उसको बता सकते हो, वो आपको सजेस्ट करेगा. बिल्डर रिव्यूज, हमने देखा है कि लोग आजकल यूजर जनरेटेड रिव्यूज हैं, आपका किस तरह का उनसे एक्सपीरियंस रहा, लोग शेयर करेंगे, सोशल मीडिया पे ऑलरेडी शेयर होता है, वो कलेक्टिवली प्रोजेक्ट वाइज आ जाएगा. तो पीपल विल मेक डिसीजंस मच फास्टर. और आइडिया यही है, द टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वैल्यूएबल एसेट. टाइम चला जाता है, वो वापस नहीं आता. पैसा चला जाता है, पैसा आप वापस ला सकते हो, वापस कमा सकते हो, लेकिन टाइम एंड टेक्नोलॉजी सेव्स टाइम. थैंक यू. Thank you so much, Mr. Adnan Tumbi, CEO, Mark Properties, for giving such an interactive and amazing presentation. We are truly delighted to listen to your insightful perspectives. Sidra, please. Now I would like to call Mr. Mustafa Shikhani, CEO, CTO, Maymun Group, to shed some light and for a short speech. Mr. Mustafa Shikhani. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you, first of all, the organizers to inviting me over here. कुछ
प्रॉप कन्वेंशन के बारे में कुछ कहने के लिए, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है, लोग ज़्यादा हैं, तो उन्होंने कहा कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. मच हैव बीन सेड अबाउट माय कंपनी बाय माय CTO, तो मैं उस बारे में इतनी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस प्रॉप टेक कन्वेंशन से कि हम इससे फ़ायदा उठा सकें. आज जो हमारा जो एक गैप है, जो एक इनकम अर्नर्स हैं, जो लो इनकम अर्नर्स जो अपना एक ख्वाब देखते हैं कि हमारा एक घर होना चाहिए, वो हम उसे पूरा करने की कोशिश करें. और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्रॉप टेक वालों से कि आप ऑर्गेनाइजर से कि आप अपनी एक ऐसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करें कि जहाँ पे बिल्डर्स, रियल स्टेट और प्रॉप टेक, जहाँ पे हम हमारी कॉस्ट को कम कर सकें और लोगों को एक घर दे सकें. आज एक सबसे बड़ा जो मसला जो हमारा ये है कि we cannot provide affordable housing, affordable flat and housing scheme to those people who want to have a flat for themselves. एक ख्वाब होता है उनका कि वो बेचारे सारा दिन काम करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, लेकिन एक घर खरीदने में उनको आज बहुत प्रॉब्लम होती है. बुकिंग करा लेते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते. तो इनसे हमारे लिए इशू होता है कि हमारी कॉस्टिंग हाई हो जाती है. हमें उन चीज़ को देखना होता है कि हम उन कॉस्ट को कम करके किस तरह एक अच्छी हाउसिंग स्कीम या अच्छे फ्लैट्स उनको दें. तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो ये कर रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इन फ्यूचर आप इन चीज़ों को और बेहतर बनाएं और हमें बिल्डर्स को या रियल स्टेट्स को ये मौका मिले कि हम हमारी चीज़ों को कम, कॉस्ट को कम कैसे करें. अदनान तुंबी साहब, आपकी वीडियो बड़ी अच्छी लगी मुझे. आप लोगों को उस स्टेज पे ले जा रहे हैं जहाँ पे वो सुस्त हो जाएं, कोई काम ना कर सकें, तो ऐसा भी बड़ी मेहरबानी होगी, ऐसा भी ना करें. तो और अपनी वीडियो को टिकटॉक पे भी लगाएं, तो शायद वहाँ से भी कुछ आपका और बेनिफिट हासिल हो सके. फॉलो तो हम कर रहे हैं, तो उसी तरह से टिकटॉक पे रहे जो लेडी ने डांस किया था. एनीवेज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स. इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात है. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Thank you, Mustafa Shekhani. He was a CEO Maiman Group. Now I would like to call Raheel Rinch, Senior Chairman, Abad Group. Please welcome Raheel Rinch. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Raheel Rinch. I'm the Regional Chairman representing Abad, Association of Builders and Developers Pakistan. इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज़ करूं, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा नईम खनानी साहब का, आतिफ आरफीन साहब का, मिसेरा का, जिन्होंने हमें आबाद को ये प्लेटफॉर्म भी दिया और ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस प्रॉप टेक कन्वेंशन में एक सपोर्ट पार्टनर के तौर पे इनके साथ हिस्सा भी लें और अपने ख्यालात का, अपने जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस कन्वेंशन में साथ आने का, उसके अंदर हम सपोर्ट भी करें और landtrack.pk और मैग्ना इंजीनियरिंग के साथ मिलके प्रॉपर्टी के अंदर, रियल स्टेट सेक्टर के अंदर किस तरह हम टेक्नोलॉजी को इंडक्ट कर सकते हैं और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में कैसे रियल स्टेट इंडस्ट्री पाकिस्तान की फ्लरिश करेगी जब हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे और उसके बगैर कैसे हम पीछे रह जाएंगे आने वाले दिनों में, जो कि आज हमारी पाकिस्तान को आज़ाद हुए 74 साल हो गए, उसके बावजूद हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की सबसे निचली सतह पे हैं. उसकी बेशुमार वजूहात हैं. स्टार्टिंग माय पॉइंट जिस तरह हमारे बहुत ही लर्नड जैगम साहब ने भी उजागर किया कि एक सबसे बड़ा जो कॉज है वो है कच्ची आबादी. मैं अपनी बात का जो बुनियादी नुक्ता है वो उसी चीज़ को कंटिन्यू करूँगा कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पे कराची, सिंध दुनिया का वाहिद शहर है, दुनिया के हज़ारों शहरों में से, जहाँ कच्ची आबादी को प्रमोट करने के लिए बाकायदा एक मिनिस्ट्री बनाई गई है. तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है. इस तरह बेशुमार इश्यूज हैं जो पाकिस्तान की रियल स्टेट इंडस्ट्री और बिलखुसूस कराची की रियल स्टेट इंडस्ट्री को दरपेश हैं. 52% ऑफ कराची एक फैक्ट एंड फिगर के तहत जो है वो कच्ची आबादी पे मुश्तमिल है. उनको कर्टेल करने के लिए सबसे बड़ा जो इस वक्त तकाजा है, वक्त का ज़रूरत है इस मौके की, वो है कि हमें गवर्नमेंट्स को आगे आना पड़ेगा. प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर अपनी भरपूर खिदमात और अपनी कोशिशें आज नहीं पिछले 20 सालों से, बिलखुसूस आबाद के प्लेटफॉर्म से पिछले 10 सालों से इस पे अपना भरपूर इनपुट दे रहे हैं. तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम जो गवर्नमेंट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स, उन तमाम लोगों को हम अपनी मुशावरत और तजावीज़ पेश करते आ रहे हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ कंसिस्टेंट पॉलिसी की वजह से
आज जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, रियल स्टेट इंडस्ट्री है, वो मुस्तकिल तनज़्ज़ुली का शिकार है। ऑल्दो कि कराची जैसे शहर में, जैसे शेखानी साहब ने भी अभी फरमाया और अदनान तुंबी साहब ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पर लोगों के आने का। और मैं सुन रहा था, हमारे यहाँ एक स्पीकर बता रहे थे कि बेशुमार लोग, मैं फ़हीम साहब को रिकोट करूंगा, फ़हीम साहब ने फरमाया कि उन्होंने देखा बेशुमार लोग पाकिस्तान से, कराची से बाहर जा रहे हैं। तो कराची एक ऐसा शहर है कि जहां बेशुमार लोग लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की वजह से यहां से बाहर जा रहे हैं, उससे 10 गुना या 100 गुना ज्यादा लोग पूरे मुल्क भर से इस शहर में आ भी रहे हैं। तो हमें इन चीजों को भी मद्देनजर रखना है कि ये वो शहर है जो बेशुमार करोड़ों लोगों को, लाखों बेरोजगार लोगों को भी रोजगार मुहैया कर रहा है। लाखों भूखे लोगों को भी यहाँ पर इस शहर में, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो रात को इस शहर में भूखा सोता हो। उसकी बेशुमार वजूहत हैं कि गवर्नमेंट की जो लैक ऑफ इंटरेस्ट था उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर आगे आया। मुतफर्रिक एनजीओज जो हैं उन्होंने रोड साइड्स पे, अलग अलग स्पॉट्स के ऊपर जो है वो फ्री मील्स का इंतजाम किया है। ये हम दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में ट्रैवल करते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। बल्कि मुशाहिदा किया है यूरोप में, अमेरिका में, एक्चुअली हकीकतन लोग पैसे ना होने की वजह से भूखे भी सोते हैं। लेकिन कराची एक वाकई ऐसा शहर है जहां ऐसा कभी नहीं होता कि कोई शख्स को खाना ना मिले रात का। लेकिन उसके साथ साथ हमें सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हमें टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को इंडक्ट करना है इस शहर के इमारत बनने में, इस शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जिसमें सबसे बड़ा फुकदान जो हम देखते हैं, जो मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा मैनेजमेंट से, लैंड ट्रैक की, कि इसकी जो नेक्स्ट हम कन्वेंशन इंशाल्लाह करने जाएं उसमें हम गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लें, ताकि उनके सामने इन इश्यूज को हम हाईलाइट करें। मैं समझता हूँ ये एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तमाम स्टेक होल्डर्स को एक अम्ब्रेला के अंदर आके इन इश्यूज को समझने में और इन चीजों को अंडरस्टैंड करने में, जो हमारे पास से ये फुकदान हम देखते आ रहे थे कई सालों से। रही बात कन्वेंशन जो आज का इनेकाद हुआ प्रॉपटेक में, इसके अंदर बेशुमार गुंजाइशें हैं, बेशुमार चीजें हैं जो इंडक्ट की जा सकती हैं आने वाले वक्त के साथ। सबसे बड़ी जो एक इसमें लैगिंग आती है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के जरिए हम लोगों को इस बात को बावर करवा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करने से वो अपनी कॉस्ट सेविंग ना सिर्फ बनने वाले मकान की, बल्कि जो मुस्तकबिल में वो उस घर में रहेंगे, उस टेक्नोलॉजी को इंडक्ट करने से उनकी जो डेली लाइफ की जो लिविंग कॉस्ट है वो भी उसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली कम होगी। जिसकी एक जिंदा मिसाल है प्रीफैब हाउसेज। एक छोटी सी चीज इनोवेशन के जरिए लाई गई। पिछले कई सालों से यहाँ कराची में कई वेंडर्स जो हैं वो उसकी सप्लाईज दे रहे हैं, लेकिन जो जनरल पॉपुलेशन है उन्होंने इस चीज को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि वो भी एक लिवेबल, हैबिटेबल स्ट्रक्चर है जिसमें रहा जा सकता है। फ्रेम कैट के ऊपर वो घर डिजाइन होता है, बजाय स्टील रोल बार के उसकी एक कंप्यूटर के जरिए स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है और सीमेंट बोर्ड के जरिए उसकी वॉल्स बना के विद इन अ फ्यू डेज आप घर का स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को इस चीज को कम्युनिकेट करने में, मैं समझता हूँ ये हमारा भी थोड़ा सा फुकदान है इसमें, और हम आबाद के प्लेटफॉर्म से कोशिश करेंगे कि जिस चीज का इनिशिएट आतिफ साहब ने, नईम साहब ने, मिसरा ने प्रॉपटेक कन्वेंशन के जरिए लिया है, हम इसको मजीद आने वाले दिनों में आबाद के प्लेटफॉर्म से टेकअप भी करेंगे और इस कन्वेंशन के जो टॉपिक्स हैं और इसमें जो उजागर किए गए इश्यूज हैं उनको हर प्लेटफॉर्म पे उजागर भी करेंगे। आबाद के तकरीबन 1400 के करीब पैन पाकिस्तान मेंबरान हैं, उनको हम इस बात पे कोशिश करके एजुकेट करेंगे कि टेक्नोलॉजी को अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इंडक्ट करने से कितने फवायद हैं। बाकी जो मैक्रो डिटेल्स हैं वो आपके तमाम पैनलिस्ट ने बयान की हैं, हम उन तमाम चीजों से मुत्तफिक भी हैं और उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में इस किस्म की बेशुमार और कन्वेंशंस हों, ताकि पब्लिक सेक्टर को इन कन्वेंशंस के जरिए ये बात एजुकेट की जा सके कि किस तरह रियल स्टेट सेक्टर में भी इनोवेशन को इंडक्ट करके बेशुमार फवायद उठाए जा सकते हैं और बेशुमार लोगों को रोजगार के मौके पैदा किए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर कंडक्टिंग सच अ वंडरफुल इवेंट एंड वी अप्रिशिएट एंड होप कि इस तरह के कन्वेंशंस आप आने वाले वक्तों में करते रहें। आबाद आपके साथ हर वक्त मौजूद है, तो मैं इस बात को अश्योर भी कराता हूं और यकीन दहानी कराता हूं कि हर मरहले पे जहां आपको आबाद की जरूरत होगी वी स्टैंड विद यू इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Rahil and Saab. It was such a pleasure listening to you, and thank you so much for all the support that we've got from Abad. Now, I'm truly delighted to offer my most hospitable welcome to the chief guest of the event, Mr. Altaf Tai, Chairman Abad. Ladies and gentlemen, please give him a very warm welcome on the stage.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बिल्ड एशिया पॉपटेक कन्वेंशन के इनेकाद करने पे लैंडमार्क प्रॉपर्टीज़ के साथ और मैग्ना प्रॉपर्टीज के साथ इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने ये जो किया है कन्वेंशन, इससे हमारी इंडस्ट्री को, हमारे मुल्क के मैन्युफैक्चरर्स को बहुत फ़ायदा पहुँचता है। और मैं भी नीचे विजिट किया था हॉल, तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 300 पार्टिसिपेंट्स थे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके अंदर से 120 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। और वो भी इसकी वजह से कि इस वक्त चाइना में कोविड है और वहाँ से ट्रैवलिंग बहुत कम है, तो स्टिल बहुत कम पार्टिसिपेंट्स है। एज ए चेयरमैन आबाद मैं कहूँगा कि आबाद इज ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 1400 मेंबर्स हैं। 1400 जो इसके मेंबर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान इस प्रॉपर्टी को अल्हम्दुलिल्लाह वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। दे परचेज अ प्लॉट और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन करते हैं इस कंट्री के अंदर फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स। आबाद को तकरीबन 50 ईयर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 50 साल से आबाद अपनी खिदमात दे रहा है इस मुल्क को, और आबाद के जो मेंबर्स हैं इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह रिहाइश दे रहे हैं, लो हाउसिंग हो या हाई एंड हो। अब जो दौर है इस वक्त, ये दौर पूरा चेंज हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर भी जो हमारे मेंबर्स हैं वो एक अच्छी, मैं समझता हूँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रिहाइश भी दे रहे हैं और लो कॉस्ट हाउसिंग भी दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारी कंट्री का? डॉक्यूमेंटेशन। जैसे रीट के अंदर का, रीट का सबसे बड़ा फायदा जो मैंने अभी सुना, बड़ी डिटेल से सुना, कि ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होगी, इससे इसके ऊपर टैक्स एग्जम्पशन एक बाकायदा रोल मॉडल इन्होंने दिया है, जिसको मैं समझता हूँ कि प्रमोट करना चाहिए। और जैसे हमारे मेंबर्स को प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ लेवरेज सिस्टम नहीं है प्रॉपर्टी में। जब हम प्रॉपर्टी देते हैं तो डेफिनेटली वी कैन परचेज द प्लॉट फ्रॉम अवर ओन एंड देन वी कैन सेल इन द मार्केट, और मार्केट से हम फंड्स, जो हमारे बायर्स हैं उनसे फंड्स लेके हम इसको डिलीवर करते हैं विद इन पीरियड ऑफ 4 to 5 मंथ। ये हमारा जो कंट्री है ना, लोग बोलते हैं इसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, ग्रोथ नहीं है। जैसे वो जियो साहब के फैसल भाई ने कहा कि यहाँ से लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखें, आपको बताओ, इस कंट्री के अंदर बहुत पोटेंशियल है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं समझता हूँ इस फैक्ट्री के अंदर पोटेंशियल होगा। एज द चेयरमैन आबाद, जिस चीज़ में हम काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ 1/3 ऑफ द GDP हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टैक्स के अंदर, और ये इसी तरीके से ये कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह फ्लरिश होगी और फ्लरिश हो रही है। इस कंट्री के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वी हैड अ पैरेलल इकोनॉमी, बहुत बड़ी पैरेलल इकोनॉमी है और बहुत बड़ी ग्रोथ है, बहुत बड़े बायर्स हैं और बहुत बड़े काम करने वाले हैं। हम दुनिया में किसी भी कंट्री में जाते हैं, मैं अमेरिका गया, आप टाइम स्क्वायर देखें, वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग है, नीचे एक 50 माली 60 माली की बिल्डिंग बनी हुई है। आप दुबई चले जाएं, आप वहाँ जाके देखें, हाई राइज बिल्डिंग मेन रोड पे बनी हुई है, 200 फीट का रोड है, इसके पीछे पूरी रेसिडेंशियल आबादी है। आप सिंगापुर चले जाएं, आप बैंकॉक चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, आप यूके चले जाएं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यही पोजीशन है। हम लोग भी चाहते थे कि इसी तरीके से, जैसे सिटी गवर्नमेंट ने, देखिए फंड्स पब्लिक जब देती है, फंड्स पब्लिक से कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने 22 रोड डिक्लेयर किए कि यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बननी चाहिए विद अ सर्टेन लॉस। उस लॉस के थ्रू अगर वो बिल्डिंग बनना शुरू हुई, प्लॉट्स कन्वर्ट हुए, उस प्लॉट के कन्वर्जन पे अनफॉर्चुनेटली हमारी जो कोर्ट्स वगैरह ने बैन लगा दिया। देखिए जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती है, जैसे बेगम साहब ने कहा कि 256 पीपल्स इन 1 किलोमीटर की इस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट है, जो कि 30 साल में बढ़ के डबल हो जाएगी, इससे भी ज्यादा हो जाएगी। तो रिक्वायरमेंट तो हमारी बढ़ती रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी इकोनॉमी का जो पहले स्केल था वो बहुत कम था, आज हमारी इकोनॉमी बहुत ऊपर चली गई। हमारा टैक्स टू GDP, जो कि मैं समझता हूं कि लोग पॉजिटिव बात करते ही नहीं इस मुल्क के लिए, इस वक्त भी इस पोजीशन में, इकोनॉमी की इस पोजीशन में भी हमने 17% टैक्स कलेक्ट किया है मोर टिल नवंबर, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है। ठीक है, हमारे यहाँ शॉर्ट ऑफ डॉलर है करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री में कर रहे हैं, चाहे रियल एस्टेट में कर रहे हैं, चाहे दूसरे सेक्टर्स में कर रहे हैं, कि कहीं भी खुशहाली नहीं हो, कहीं भी स्प्रेड नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना चाहिए इस मुल्क के लिए, थिंग्स विल बी बेटर अगर हमारी पॉलिटिशियन, हमारी जो हाई अप्स है, हमारी ब्यूरोक्रेसी, अगर वो राइट ट्रैक पे आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि स्टिल वाकई इसमें इतनी अपॉर्चुनिटी है कि वी कैन नॉट मतलब डिफाइन इन वर्ड्स। मैं यही कहूंगा अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के साथ हम लोग खड़े रहना चाहिए हमको, और ऑलवेज पॉजिटिव बात करनी चाहिए। मैं जहां भी गया, जिस फोरम पे भी गया, लोग बोलते हैं कि इस कंट्री के अंदर कुछ नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, 54 ईयर्स ओल्ड, तो मैं समझती हमारी लेवरेज पे है, विच इज अ गुड थिंग। जिस तरीके से हमारी प्रॉपर्टीज की कीमतें बढ़ी हैं, तो आप खुद सोचे कि अगर जब हमारा बंगाल अलग हुआ तो वी हैव 50 मिलियन पॉपुलेशन, आज हमारे पास ऑलमोस्ट
जो पॉपुलेशन एज पर सेंसस है वो 22-30 मिलियन है, लेकिन ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 280 मिलियन से कम नहीं है। तो इस तरीके से जारी बात है, अगर एक वही एरिया रह जाएगा और लोग बढ़ेंगे और लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ती रहेंगी। तो हमें बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से आज जैसे प्रोपेक्ट हुआ तो यहाँ पे लोग आएंगे, देखेंगे, चीजें मिलेंगी तो काम होगा। इसी तरीके से जैसे हम लोग काम करते हैं तो वी हैव रिलेटेड 72 इंडस्ट्रीज जो हमसे रिलेटेड है, वो टैक्स टू जीडीपी अलग कंट्रीब्यूट करती हैं। इसके बाद हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने के बाद हम टैक्स टू जीडीपी देते हैं, तो इससे बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो अगर इस मुल्क के अंदर काम होता है, चाहे हम आबाद के थ्रू करें, चाहे हम रियल एस्टेट के थ्रू करें, चाहे हम इंडस्ट्री के थ्रू करें, बट बेटर के काम करना चाहिए और ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज होने चाहिए। मैं बड़ा इनको मुबारकबाद दूंगा और कहूंगा कि अगली दफा भी इसी तरह के इवेंट होते जाइए विद मोर बेनिफिट, और भी ले और आबाद इंशाल्लाह ऐसे इवेंट्स को सपोर्ट करता रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you so much, sir, for taking your precious time out and for gracing the event with your promising presence. Now, I would, since the chief guest and Mr. Rahil Rinch, they have to leave, so we'll just present their shields over here. To present the shield, I would like to invite on stage Mr. Naeem Khanani, Mr. Farhan Anis, Vice President E-Commerce Gateway, and Mr. Atif Arifin, CEO Landtrack. Please join us on the stage. Now, I would request the chief guest of the session, Mr. Altaf Tai, Chairman Abad, please come on the stage and receive the souvenir. Mr. Rahil Rinsab, Senior Chairman Abad, is requested to South Region. Okay, South Regional Chairman Abad, please join us on the stage and receive the shield. Policy. Thank you so much for gracing us with your presence. Now, we would like to invite Mr. Mohammed Taha. He will be talking about building informational modeling, key advantages during and post constructions. Please warm welcome Mr. Mohammed Taha, Manager and Certified Trainer for Osmani Group of Companies. Mr. Taha. Yeah, sure. Clicker is there. Yeah, please speak. Okay. Assalamu alaikum everyone. आई नो आप में से ज़्यादातर रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी जैसे अदनान साहब ने एंड ऑल ऑफ द पीपल दे टॉक्ड अबाउट कि किस तरह से रियल एस्टेट में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, राइट? सो आई विल बी स्पीकिंग अबाउट अनदर टेक्नोलॉजी विच इज़ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग.
I know time is very quick, and building information. I'm a certified trainer because I know it's a course which takes more than 3 months to teach. So I do not expect after this 10-minute section you will have everything. But I'm just going to have a quick introduction and just get towards the beef. कि व्हाट इज बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग और आप लोग इससे क्या ले जा सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रियल एस्टेट में बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग और वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और एक्सटेंडेड रियलिटी किस तरह से हेल्प कर सकती है. So this is the sequence of the presentation would be, I belong to Usmani and Company. We have more than 62 years of existence now, and we are on the buildings project, the infrastructure project. And those of you जो आप लोग real estate industry से हैं, you might have heard about it as well at some point in time, because we are one of the largest consultant groups of Pakistan. These are some our group companies. This is our management team. So let's get towards the part कि building information modeling actually है क्या. जो भी आप फिजिकल एसेट्स बना रहे हैं उनकी वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन, स्मार्ट वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन कहलाती है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग. जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसका प्लान होता है, डिजाइन होता है, फिर कंस्ट्रक्शन होती है, फिर ऑपरेशंस की तरफ जाता है. ये पूरा प्रोसेस कंबाइन होता है जिसको हम कहते हैं अप्रोच में, जो कि कहलाती है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग. ओके, सो इंटीग्रेट कर देता है तमाम डिसिप्लिन्स को. आई विल बी शोइंग यू सम पिक्चर्स. आई वोंट बी स्टेइंग ऑन द बोरिंग स्टफ, सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो आई विल जस्ट गेट टुवर्ड द बीफ एज सून एज पॉसिबल. दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू स्पेंड टाइम एक्चुअली कि रियल एस्टेट में कैसे बिल्डिंग मॉडलिंग हेल्प कर सकती है, बिकॉज आई वांट यू गाइज टू टेक एज सून एज पॉसिबल कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सिर्फ डिजाइनर्स के लिए नहीं है, रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए भी है, रियल एस्टेट डेवलपर्स, प्रॉपर्टी डेवलपर्स के लिए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, आपके प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग और कॉस्टिंग बहुत ऑप्टिमाइज हो जाती है, बिकॉज तमाम चीज़ें डिजिटल हो जाती हैं. आप जो डॉक्यूमेंटेड पेपर वर्क है, बहुत सारी चीज़ों से बाहर आ जाते हैं. आई डोंट नो, आपने किसी ने सुना हो कि अभी रिसेंटली यूएसए ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्रिज का प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर किया है, विच इज़ कम्प्लीटली पेपरलेस. यानी कि उन्होंने कोई पेपर उसमें जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में इस्तेमाल नहीं किया, एवरीथिंग वाज डिजिटल. तो दुनिया जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग की ज़रूरत है. वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी हमने स्टॉल भी प्लेस किया, जिसने आप में से जिन लोगों ने अगर एक्सपीरियंस किया हो तो उन लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से जो आप रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं वो बजाय एक पूरा मॉडल विला बनाए, मॉडल हाउस बनाए, आप एक वर्चुअल मॉडल बनाकर भी क्लाइंट्स को या टारगेट ऑडियंस को जो है वो एक्सपीरियंस करवा सकते हैं. बिल्डिंग उस्मानी ग्रुप में हम लोग 5 साल से तकरीबन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग पे काम कर रहे हैं. क्लाइंट्स के साथ हमारी डीलिंग्स चल रही होती हैं, वैल्यू मैनेजमेंट मीटिंग्स ये तमाम चल रही होती हैं. बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग की एक कोर चीज़ ये है कि तमाम काम सेंट्रलाइज होता है, यानी कि आपका सेंट्रल सिस्टम पे काम चल रहा होता है. तो हमने अपना एक डेटा सेंटर कंपनी में डेडिकेटेड बनाया हुआ है, जिसमें तमाम डेटा एक ही लोकेशन पे स्टोर हो रहा होता है. मैं थोड़ा डिज़ाइनर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ. जो लोग डिज़ाइन में इन्वॉल्व है उनको पता होगा कि किस तरह से मुश्किल हो जाता है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को एक तरफ लेकर आना. डिज़ाइन स्टूडियो में हमारा पाकिस्तान में फर्स्ट बिम इंक्यूबेटर सेंटर हमने जो है वो लॉन्च किया, जहाँ पे हम लोग बिम की ट्रेनिंग्स देते हैं, वर्चुअल रियलिटी की ट्रेनिंग्स, मिक्स रियलिटी की ट्रेनिंग्स. तो ये तमाम चीज़ें हम कर रहे होते हैं. जो उस्मानी में बिम की कैपेबिलिटीज हैं, आई जस्ट शो यू. आर्किटेक्ट, दिस इज अ रियल लाइफ प्रोजेक्ट बाय द वे, 40-story बिल्डिंग विच वी डिलीवर्ड इन बिम. स्ट्रक्चरल बिम जो स्ट्रक्चर साइड पे जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं. मैकेनिकल एंड प्लम्बिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप रियल एस्टेट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप साइट पे किसी चीज़ की एग्जीक्यूशन करते हैं तो क्लैशेस आ रहे होते हैं एक दूसरे की सर्विसेज के दरमियान. वो क्लैशेस जो है वो जब आप उसको वर्चुअल मॉडल बना के कर लेते हैं तो वहीं रिजॉल्व हो जाते हैं. तो आप बजाय जो साइट पे अगर आप में से कोई साइट से बिलोंग करता है तो दे विल रिलेटेड कि वो वहाँ पे जाकर जो चीज़ें तोड़ फोड़ करके सही कर रहे होते हैं वो आप पहले ही वर्चुअली कर सकते हैं. Augmented and virtual reality, we already are working on that and our stall is over there. One important thing जिसकी आज जो बात कर रहे थे, जैसे अदनान साहब ने भी बात कही थी, हम लोग अब पॉइंट क्लाउड की तरफ जा रहे हैं, यानी जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उनको भी डिजिटलाइज कर रहे हैं. अगर आपको पता हो तो 2030 में पूरी जो दुबई है, दे आर प्लानिंग एंड मिडिल ईस्ट इज प्लानिंग कि वो अपने आप को डिजिटलाइज कर लेंगे. इसका मतलब ये कि उनकी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को भी डिजिटल करना होगा. तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को डिजिटल करने के लिए वी आर वर्किंग ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिससे हम एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का पॉइंट क्लाउड, देयर आर मिलियंस ऑफ पॉइंट क्लाउड एंड वी कलेक्ट द डेटा एंड देन कैरी आउट द रियल लाइफ मॉडल्स. Trainings में भी हम होते हैं. So I'll just quickly wrap up with some of the projects that we are doing in BIM. This is a 40-story building that we have developed, and
If you can see, these are the digital representation of the models that we are talking about. These are the structural models, the plumbing models. Not only that, लेकिन एक और चीज़ ये है कि जब आप डिजिटली किसी चीज़ को कर रहे होते हैं, आपने अगर कोई आप में से आर्किटेक्ट है या कोई है तो उन्होंने देखा होगा कि जो मैनुअल प्रोसेस में काम होता है, तो आपके पास जो है वो बहुत एक जगह पे आपने चेंज कोई किया तो वो पूरी मॉडल में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा होता. तो मकसद ये कि एक ही जगह सारी चीज़ें सेंट्रलाइज होती हैं, तो आपकी कॉस्टिंग, शेड्यूलिंग सब बहुत तेजी से हो जाती है. सो आई जस्ट रैप अप विद सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स. दिस इज अ 20-story building that we did. This is an international project that we are doing, which is in Turkey right now. और अगर आप देखें इस प्रोजेक्ट को, तो ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है कि जो कि नॉर्मल जो हमारे डिजाइनर्स टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते हैं उससे डिलीवर ही नहीं कर सकते हैं ओवर देयर, राइट. सो ये एक हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो वी आर डूइंग दैट ऑन BEM. तो ये जो अब अगर आप ये देखें तो हॉस्पिटल जैसे प्रोजेक्ट में बहुत हैवी इक्विपमेंट होता है, तो हम अपने क्लाइंट्स को या जो एंड यूजर है उनको इस तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करके उनके लिए चीज़ों को पहले ही बेहतर बना देते हैं. सो अबाउट दैट, ये जो तमाम हम काम कर रहे हैं ये सब वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी पे भी चला जाता है. अब अगर आप इनमें से देखें तो आप 2D मॉडल के साथ साथ उसकी शीट्स और मतलब जो साइट पे कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी जनरेट करते जा रहे हैं. सो आई नो द टाइम इज शॉर्ट, सो आई जस्ट हैव टू क्विकली गिव यू, एंड दिस इज द एग्जैक्ट फार्म हाउस जो हम अभी रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं. तो अगर आप देखें यहाँ डिजिटली क्रिएटेड है, एंड देन दिस इज ऑल्सो इन वर्चुअल रियलिटी. So my key message to you, all of you, is digital is the future. It's not just for the contractors, for the designers, but real estate industry should also adopt this, upcoming thing, which is a very good technology, and this will also help you in the long run. Thank you so much. Thank you. Digital is the future. Digital industry should adopt. That was Mr. Taha. Taha has beautifully touch-based all the key elements of building information modeling. Now we would like to request Mr. Faraz Kavi, Chairman Foundation Group, for a short speech on the subject. Please welcome Mr. Faraz Kavi. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जज़ाकल्लाह. मैं ऑर्गेनाइज़र आतिफ आरफीन और नईम खानानी को प्रॉप टेक कन्वेंशन की जो उन्होंने अरेंजमेंट की है उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ. मेरा ताल्लुक़ फाउंडेशन ग्रुप से है और हमारे जो रियल इस्टेट का काम है वो DHA में, और इंशाल्लाह जो चीज़ें हमने आज सीखी हैं वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ काम करेंगे. जज़ाकल्लाह. Once again, congratulations. Thank you very much. Now, thank you so much, Mr. Faraz Kavi. Now there will be a shield certification. Now I would like to request Mr. Nadeem Kinani and Hira Naeem and Mr. Naeem Khanani, Mr. Atif Arfeen, please join us on the stage for the souvenir distribution segment. can we please have on stage Mr. Umar Ghani, CEO, Veritas Reed. We would also like to invite Mr. Munir from Land Track to join this shield distribution ceremony, please. Now I would like to request Mr. Shan Agha, CEO, Azad Properties.
Thank you so much. Now I would like to call Mr. Faraz Kavi, Chairman, Foundation Group. Now may I please request Adnan Tumbi, CEO, Mark Properties, to come on stage, please. Adnan Tumbi. ये है ना सैयद जहीर ताहा. Can I have Mr. Taha on stage, please, to receive his shield? He's a certified trainer from Usmani Group of Companies. Zahir Ali Gilani पे चलिए. Now I would like to request Shazir Shehbaz from Foundation State. Can we please have him on stage? Shazir. Okay, Mr. Adnan Tumbi, CEO, Mark Properties, is requested to come on the stage and receive his shield, please. Mr. Iftikhar Bhura, CEO, Desire Properties, is requested to come on the stage and receive his shield, please. आ रहे दोनों आते हैं. आपको जो नाम Can I please request Mr. Shazir Shehbaz from Foundation State to please come on stage and receive your shield, please? Okay. Mr. Shazir is requested to come on the stage and receive his shield, please. Now, I would request architect Naki Ijaz, CEO, Mimar, please join us on the stage and receive your shield. Do we have architect Naki Ijaz over here? Thank you all for your kind participation in this momentous event and making it a memorable one. You all are requested to please proceed towards the high tea area. Thank you once again. Allah Hafiz. Have a good time. Yeah.